हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स। The many critics has been to call this is a directive principle of state policy is not to be better than a New Year greetings. Even to the rationale of instant things such as a high-sounding promise has been to the questioned. It has been to the asserted that the directives are in their form of holy wishes, having no legal assertions behind them. The government is not bound to be implement them. And critics is a point out that they are not be formulated keeping their practice accepted this idea in a mind. And therefore all this it can be not be said that this and this principle are absolute of useless. They have their own utility and significance. The directive principles are just like a pole star that is provided direction. Their basic aim into the pre-studied as their government to provide a social, economical justice in all the sphere of life and keeping in view in the limit material and source at their earliest possible. Many of them has been to implemented every successfully. Actually, no government can be afford to the ignore this instruction as they are a mirror of the public's opinion and also reflect the basic spirit of the preamble of our constitutions. Some of steps taken in their direction are began listed below. The first year the land reform has been introduced and Jagidari and Jamidari system has been to the abolished. The next year, there has been to the rapid industrialization and tremendous is increasing in the agriculture production through the Green Revolution. And next year, National Commission for the Welfare of Women has been established. And sealing has been to the place on land and property to fix them a limit persons as a holding. And there is a previous process of X principle has been is published and life insurance, general insurance as a most of the bank has been nominalized. And in order to reduce economical disparities, right to the is property has been detected from their chapter on fundamental right. And subsidies public distribution schemes has been launched to help the poor people. The rules require that both men and women are paid equal wage for the equal work. Untouchability has been to is abolished. Their necessary effort has been to the made from is a filament and of the SC, ST and the other backward classes. Third, the 73 and 74 is amendment of the constitution is 91 and 92. Respectively, the Panchayati Raj has been given to the constitution states with the more power. The 12th point is a small scale village industries and Khadi Gram Udyog has been to the encouraged to be varying to the prosperity to be a rural area. India has also is been to actively cooperate with the UN to promote to international peace and security. The above step on the part of the center and the state of government indicate that many directive principle of state policy has been implemented to lay down to the fundamental of scale socialist and welfare state. However, still there is a long way to be go achieve all them in a full. There are many hindrances in the non-implementation of directives principle of state policy. There are main reasons are lack of political will on the part of the state and the lack of the awareness and organized action on the part of the people and limited material resource. तो जैसा कि आपको पता ही है कि नीति निर्देश सिद्धांत तो हमने सब कुछ जान लिया है, लेकिन कुछ बातों में इसके आलोचनात्मक व्याख्या भी की जा सकती है। कहते हैं कई बार तो एग्जामिनर के जो है आलोचनात्मक व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण भी बना के एग्जाम में डाला है, तो इसको जो है इग्नोर कर देना सबसे बड़ा मूर्खता होगी। इसलिए जो है आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आलोचनात्मक व्याख्या क्या है नीति निर्देश सिद्धांत की। कहते हैं कई आलोचकों ने राज्य के नीति सिद्धांतों को नव वर्ष की शुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना है। दरअसल इन
उच्च आदर्श को संविधान में शामिल करने से औचित्य पर भी सवाल उठता है। देखिए बात तो बहुत ज़रूरी है कि हमने संविधान को तो बहुत ऊपर तक बना दिया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी है, लेकिन क्या इसका औचित्य रहेगा? माना जाता है कि ये निर्देश मात्र शुभकामनाएं ही है। बात सही है कि ये सिर्फ एक शुभकामनाएं की तरह ही दिया गया है, लेकिन इसको लागू ढंग से नहीं किया गया है, जिनके पीछे कई कानून मान्यता नहीं है। सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। आलोचकों का मानना है कि इन सिद्धांतों को व्यवहारिक आधार पर नहीं उतारा जा सकता है। इस सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सिद्धांत पुण्य जरूपन पेंस जो है अर्थहीन है। इसकी अपनी उपयोगिता और महत्व भी है। नीति निर्देश सिद्धांत जो है ध्रुव तारा की तरह है, जो हमें दिशा दिखलाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों के बावजूद जीवन के हर पहलू में यथाशीघ्र सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। कुछ सिद्धांतों को तो सफलतापूर्वक लागू भी किया गया है। वास्तव में कोई भी सरकार इन निर्देशों को अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जनमत का दर्पण है, साथ ही ये संविधान की प्रस्तावना की भी आत्मा है। यानी कहते प्रस्तावना की आत्मा माना गया है। इन्हें लागू करने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले तो यही कदम उठाया गया था कि भूमि सुधार लागू किए गए थे और जमींदार और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया था इसके अनुसार। ठीक है, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ और हम हरित क्रांति द्वारा कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी भी की है। ठीक है, महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई और व्यक्तियों की जो है भूमि संपत्ति की सीमा तय करने के लिए जो हरबंदी लागू भी किया गया। कहते हैं व्यक्ति की संबंधी बहुत से कार्य किए गए। राजवाड़ों के दिए जाने वाले प्रिवी पर्स का जो है उन्मूलन किया गया और जीवन बीमा, साधारण बीमा तथा अधिकांश बैंकों को राष्ट्रीयकरण किए गए। तो ये सब नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत ही हुआ। आर्थिक विषमता कम करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। उसके पश्चात निर्धनों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की माध्यम सहायता भी दी जाती है। स्त्री और पुरुष दोनों के सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन के लिए नियम भी बनाए गए हैं। छुआछूत का उन्मूलन भी किया गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कारगर प्रयास भी किए गए हैं। कहते हैं 73 और 74वें में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए और अधिक सशक्त बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग तथा खादी ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित भी किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के को प्रोत्साहन करने के लिए सक्रिय रूप से संयुक्त राज्यों के साथ सहयोग भी कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त कदम यह दर्शाते हैं कि भारत में एक जो है पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य की नींव डालने के लिए कई नीति निर्देश सिद्धांत को लागू किया गया है। ये सच है कि सभी नीति निर्देश सिद्धांत पूर्णतः लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी अभी है। तो निर्देश सिद्धांत को लागू किए जाने के रास्ते में कई बाधाएं हैं। इनमें से मुख्य हैं राज्यों के में रीति निर्देश इच्छा शक्ति का अभाव, यानी राज्यों में जो है इच्छा शक्ति नहीं रह जाती है। गाँव में जागरूकता एवं संगठन का अभाव और सीमित साधन। दोस्तों ये आलोचना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें मौलिक कर्तव्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो जो है दूसरे बच्चों को पहुंचाने में भी आपको सहायता करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है, जिससे दूसरे बच्चे को भी ये लिंक प्राप्त हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि सर्च करने से जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर नहीं आता है। बेशक आप किसी बच्चों को बताइएगा कि मैंने त्रिपाण स्टडी सेंटर से देखा है, वो रिसर्च करेगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको गलत बोल देगा। इससे अच्छा है कि लिंक को आपने क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर कॉपी करके लगा देना है। जिन बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को बताया जा सकता है, ज़बरदस्ती कुछ भी कार्य करवाया नहीं जा सकता। जो चीज़ जहाँ समझ में आता है वही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर ही समझिए। कहते हैं आपका ज्ञान है, आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि कौन ज्ञान, कहाँ ज्ञान, कौन सा ज्ञान आपको सही बताया जा रहा है, सही समझाया जा रहा है, जो आपके फ़ायदे में भी हो और आपके एग्ज़ाम व्यू से भी सही हो।